when we go back, we'll be opposing BJP, we'll be opposing निशिकांत दुबे टूथ एंड नेल। पार्लियामेंट में यदि कोई दो आदमी बहुत लड़ता हुआ नजर आता है तो वो ओवैसी साहब और मैं। Pakistan gives out a wrong message to the Arab world and to the Muslim world that we are a Muslim country and India is not a Muslim country. But Your Excellency, you know, you have more knowledge about worldly affairs, that there are 240 million proud Indian Muslims living in India. And not only that, we have our Islamic scholars are much better than any scholars in the world. They can speak the best of Arabic language. In fact, we have some famous Islamic scholars who have done great work in the Hanafi fiqh jurisprudence, and their judgments are accepted by the religious scholars of anywhere in the world. So this Pakistan's false propaganda that India is hurting us because we're a Muslim country, it is completely wrong. And in fact, Pakistan, if it stops these Takfiri terrorist groups, there will be stability in South Asia, there will be progress in South Asia. And Pakistan has put obstacles even in the SARC. India wanted a bilateral railway agreement between all the SARC countries. India wanted Bangladesh, India train, but Pakistan has always not allowed it. So we hope that our delegation, which is here on this purpose to request you to bring to your light what Pakistan has been doing in India, and this false propaganda of Pakistan that they have this great military prowess and nothing like that. What happened on the 9th? Their 9 air bases were targeted. If India had wanted, we could have completely damaged those air bases, but we wanted to show them a mirror and say that, look, we are warning you, don't do it. Don't force us to go on that path, wherein instead of creating a crater, we'll create graves for you. But 9 terrorist organizations' headquarters were targeted, and another shocking thing was this person who led the Namaz-e-Janaza of all those terrorists who were killed over there. The Namaz-e-Janaza was performed by a person who's again a designated US terrorist. And in Namaz-e-Janaza you have these proscribed organization members along with the Pakistani army. So this is a clear proof, and this TRF, which is a new name for LET, we had gone to the United Nations not once, 4 times, and told the United Nations Sanction Committee 1624 that this is a new name of this terrorist organization. We said this in December 23, we said this in now May 24, and unfortunately our fears had come true, and we lost 26 young people. A girl who got married 6 days ago became a widow on 7th day. So these are all tragedies which we have been facing. So for us, this is not a matter of to do politics. Yes, when we go back, we'll be opposing BJP, we'll be opposing Nishikant Dubey tooth and nail. But here, this is a matter of security of our country, integrity of our country. पार्लियामेंट में यदि कोई दो आदमी बहुत लड़ता हुआ नजर आता है तो वो ओवैसी साहब और मैं। लेकिन देश जब संकट की स्थिति में हो और खतरा बाहर से हो, तो एक संस्कृत का श्लोक है कि सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धय त्यजति पांडितः। यदि सर्वनाश होने की स्थिति हो तो आधी चीजें छोड़कर बचाव में लग जाना चाहिए। तो हम लोगों ने अपनी आइडियोलॉजी को भारत में छोड़ दिया है और बाहर में भारत एक है, इस मैसेज के लिए हम और ओवैसी साहब एक साथ चलते हैं। दो तीन चीजें हैं, बहुत लंबा जितना बोलना था वो हमारे टीम लीडर बोल चुके हैं। सबसे पहले तो आप यहां क्यों? भारत 140 करोड़ लोगों का देश है, एस्पिरेशनल भारत है, लेकिन 27 लाख लोग सऊदी अरब में क्यों हैं? शायद वहां भारत में
आज से 10 साल पहले 15 साल पहले संभावनाएं नहीं थी, क्योंकि मैं कल से लेके परसों से लेके जब भी लोगों से मिला हूं, खासकर गल्फ में, तो कोई जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि वो 40-50 साल पहले आए, कोई 30 साल पहले आए, कोई 25 साल पहले आए। आज ही मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि आने वाले लोगों की संख्या थोड़ी घट इसलिए रही है क्योंकि भारत में ही उनको संभावनाएं दिखाई दे रही। लेकिन आप आए, आपने नाम कमाया, और आप जो कुछ भी कमा रहे हैं, एक तो अपना इज्जत कमा रहे हैं इस देश में, और जो पैसा कमा रहे हैं वो भारत को दे रहे हैं, जिसमें भारत की इकोनॉमी दिन प्रतिदिन मजबूत हो रही है। इसमें आप लोगों का बड़ा योगदान है। लेकिन दो चीजें हैं जो प्रश्न आपने पूछा हमसे। सऊदी अरब कह रहा है कि 2030 तक वो अपने देश का काया पलट कर दे, उसका एक टारगेट है। और हमारा टारगेट है कि हम 2047 तक अपने देश का जो है काया पलट कर देंगे, हम विकसित भारत बन जाएंगे। और कैच वही है, अपना जो काम है, प्रमुख काम है, वो यही है कि हम जब तक सऊदी अरब में हैं तब तक सऊदी को 2030 तक कैसे आगे जाना है, और उसके आगे जाने का रास्ता क्या है, और 2047 में यदि भारत को आगे जाना है, विकसित भारत बनना है, माननीय मोदी जी के विजन को लागू करना है, तो उसको कैसे करना है। और उसमें सऊदी अरब और भारत दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। आवश्यकता कैसे है? जो बात आपने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, साइबर सिक्योरिटी का, सुपर कंप्यूटर का, क्वांटम कंप्यूटर का, ये सब में हम मास्टर हैं। आज अमेरिका की पूरी सिलिकॉन वैली लगभग हम कंट्रोल किए हुए हैं, हमारे लोग वहां हैं, सुंदर पिचई से लेके सत्य नडेला तक, वो सभी जो है दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं। और अगली लड़ाई टेक्नोलॉजी की ही होनी है। अमेरिका जिस सामान को $100 में देगा, हम $2, $4, $5 में बना पाने की स्थिति में। अभी चांद जब हम गए, हमने दिखाया कि जो जितने में वो घर बना सकता है, छोटा सा घर अमेरिकन, हम उसमें चांद के ऊपर जा सकते हैं। और आपका काम यही है और हमारा काम यही है कि सऊदी अरब को 2030 का रास्ता यदि दिखाना है, तो उसको यह दिखाना है कि भारत में जो लोग मौजूद हैं, उनके पास जो ब्रेन है, उनकी कंपनियों में जो ताकत है, वो सऊदी अरब अपने लिए यूज करे। ये काम यदि आप कर पाए तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारे और आपके रास्ते में, खासकर सऊदी अरब में, क्योंकि एक चीज जो सऊदी अरब और गल्फ कंट्रीज बराबर कहता है कि भारत भी दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, इसके साथ पुराने रिलेशन है, लेकिन पाकिस्तान भी दोस्त है। तो संधू साहब ने जो कहा, या जो एक वक्ता कह रहे थे कि हम बहुत ऊंचे हैं, बहुत हाइट है और पाकिस्तान कुछ नहीं है, पाकिस्तान सचमुच कुछ नहीं होगा यदि हमारा और सऊदी अरब का उस तरह का रिलेशन आप बना पाने में कामयाब हो जाएंगे। इसीलिए आपका सबसे बड़ा काम है